Hello friends, welcome to the channel. I am Poonam Dua from M&T Education Academy of Literature. Today we are bringing to you a video that will help you solve the reading passages of MA English entrance exam, which many students find very difficult to solve. And this particular text has been taken from 2019, the recent DU MA English entrance exam. Let us begin the video now, and please do not forget to share and subscribe the channel. You can also contact to join our classes by sending a WhatsApp at the given number. Let us begin the passage now. Okay, this is a sonnet. Today's passage is about a sonnet. Let me tell you about this sonnet or this question, which was part of 2019 DU MA English entrance exam. This was the sonnet which was titled as How Do I Love Thee. This is sonnet number 43 by विक्टोरियन पोएट एलिजाबेथ बैरेट ब्राउनिंग. तो आप यहाँ पर देख सकते हैं किसका लिखा हुआ था. दिस वॉज रिटन बाय एलिजाबेथ बैरेट ब्राउनिंग. हाउ डू आई लव दी, लेट मी काउंट द वेज इज अ सोनेट बाय द 19th century poet Elizabeth Barrett Browning, and this is also called sonnet 43, and this is taken from sonnets from Portuguese जो कि 1850 में पब्लिश हुआ था. तो आपको इतनी जो एडिशनल इन्फॉर्मेशन मिल गई है उसका भी बहुत अच्छे से ध्यान रखिए. अब मैं आपको बताती हूँ इस सोनेट में ऐसा है क्या. एक तो हमें ये पता है कि 14 लाइन्स होती ही हैं सोनेट्स में. दिस इज अ सोनेट बाय 19th century poet Elizabeth Barrett Browning. It is her most famous and best loved poetry as well, having first appeared as sonnet 43 in her collection Sonnets from Portuguese 1850. The entire sonnet, the whole sonnet addresses this lover दी. दी जिसको कि हम यूज़ करते थे ओल्ड इंग्लिश में यू के लिए, THEE दी. हु may also be considered as the listener. तो इस दी को, इस यू को हम एज अ लिसनर भी कंसिडर कर सकते हैं, एज इट इज़ नोन दैट एलिजाबेथ बैरेट ब्राउनिंग डेडिकेटेड दिस पोइट्री टू हर हस्बैंड. तो ये बड़ा ही एक नोन फैक्ट है कि एलिजाबेथ ने ये पोइट्री अपने हस्बैंड को डेडिकेट की थी. शी इज़ अज्यूम टू बी द स्पीकर एड्रेसिंग हर हस्बैंड. तो ऐसा माना जाता है कि एलिजाबेथ खुद इसकी स्पीकर हैं जो कि अपने हस्बैंड को ये पोइट्री एड्रेस कर रही हैं. अब आइए देखते हैं फर्स्ट क्वेश्चन क्या है इसका. द फर्स्ट क्वेश्चन इज अबाउट फर्स्ट 6 lines. The first 6 lines of the sonnet derive their force from the way in which they discuss something of the following. तो इन 4 में से हमें देखना है कि ये पोइट्री बेसिकली क्या डिस्कस करती है. तो ये पोइट्री डिस्कस करती है. द करेक्ट आंसर इज दिस ऑप्शन, ऑप्शन ID 45271. द एवरीडे एंड द sublime in terms of each other. This is what is being discussed in this particular poetry. The correct answer is the everyday and sublime in terms of each other. तो पहले हम समझते हैं कि sublime है क्या. मेरा पर्पस नहीं है आपको सिर्फ ये बताना कि ये करेक्ट आंसर है, ये राइट आंसर है, ये रॉन्ग आंसर है. वो तो आपको बुक्स में से भी पता इजीली चल ही जाता है. माई पर्पस इज टू मेक यू अंडरस्टैंड द आंसर इन अ प्रॉपर मैनर. तो सबसे पहले हम सबलाइम का मतलब देखेंगे. सबलाइम मीन्स something of very great excellence or beauty that can be related to a person's attitude or the person's behavior as well. Extreme or unparalleled you can say. तो किसी भी extreme level पर किसी चीज़ को दिखाना is called sublime. तो the speaker here in this poetry describes all the ways in which she loves her husband. तो speaker बताती है कि किस किस तरीके से अपने husband से वो बहुत ज़्यादा प्यार करती है. speaker का love बहुत ही multifaceted है, बहुत ही ज़्यादा है, and as it can be compared to many aspects of life. Initially she describes her love as a powerful force of her soul, so great in extent that she attempts to measure it in 3-dimensional form. तो वो अपने लव को 3 dimensions में डिपिक्ट करती है, डेप्थ, ब्रेथ और हाइट में. एंड डेप्थ, ब्रेथ ऑफ हाइट में जब वो अपने लव को डिपिक्ट करती है तो ऐसा लगता है कि किसी क्यूबिकल फिगर की बात हो रही है. नेक्स्ट शी इलस्ट्रेट्स अ क्वाइटर लव, एक शांत सा लव दैट सस्टेन्स इन हर डेली लाइफ जस्ट एज द लाइट ऑफ सन इल्यूमिनेट्स हर डे. तो जिस तरीके से सन हमारी लाइफ को एक लाइट देता है, या कैंडल भी इवन हमारी लाइफ को लाइट देती है, उसको डिस्क्राइब किया गया है इस पोइट्री में. एज इट इज़ नोन दैट एलिजाबेथ बैरेट ब्राउनिंग डेडिकेटेड दिस पोइट्री टू हर हस्बैंड. शी इज़ अज्यूम्ड टू बी द स्पीकर एंड द स्पीकर इज एड्रेसिंग हर लवर, हर हस्बैंड. तो आइए बढ़ते हैं अब नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ. तो इस पोइट्री में एक एक्सट्रीम लेवल का लव दिखाया गया, दैट वी अंडरस्टूड फ्रॉम दिस फर्स्ट क्वेश्चन. Okay, the sonnet reveals the period of its composition in the way it. अब आप ये सभी लिखी हुई ऑप्शंस को पढ़िए और मुझे
बताइए या खुद से जानने की कोशिश करिए कि इसका आंसर क्या हो सकता है। मैं तो आपको बताऊंगी ही, पहले आप एक बार ऑप्शंस पढ़कर जानने की कोशिश करिए। ये एक ऐसी पोइट्री है जिसमें एक लवर, फीमेल लवर, अपने लव को बहुत सारी चीज़ों के साथ कंपेयर कर रही है। तो क्या पॉसिबल आंसर हो सकता है इसका? ओके, आप वीडियो पॉज करके भी थोड़ा सोच सकते हैं मेरा आंसर जानने से पहले। आई एम ऑल्सो टेलिंग यू दी आंसर नाउ। ऑप्शन नंबर 2 इज दी right answer. Depends upon unraveling an elaborate metaphysical conceit. Actually, she keeps comparing her love to many things in the same fashion as metaphysical poets. तो जिस तरीके से metaphysical poets बहुत ज़्यादा conceits यूज़ किया करते थे, बहुत ज़्यादा comparisons यूज़ किया करते थे, उसी तरीके से एलिजाबेथ बेरेट ब्राउनिंग ने भी अपने लव को बहुत सारी चीज़ों के साथ कंपेयर किया है। तो आइए देखते हैं किस तरीके से एलिजाबेथ ने कंपेयर किया है अपने लव को। सी दीज लाइन्स, आई लव दी टू दी डेप्थ एंड ब्रेथ एंड हाइट, it seems the love is turned into some kind of cubical figure. मैंने आपसे पहले भी ये बात कही थी इसी वीडियो में। And then she says I love thee to the level of every day's most quiet need by sun and candlelight. तो that means कि she is comparing her love with all the daily needs. तो लव का कहीं ना कहीं एक रेगुलर लेवल पर कंपैरिजन है। दिस इज व्हाट वी कॉल मेटाफिजिकलिटी, दिस इज व्हाट वी कॉल मेटाफिजिकल कंसीट। तो हम कहेंगे ऑप्शन नंबर 2 इज द राइट आंसर टू दिस क्वेश्चन। लेट अस मूव ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन एंड सी व्हाट दिस क्वेश्चन सेज। दिस क्वेश्चन is how do I love thee, let me count the ways. ये इसकी फर्स्ट लाइन है। The sonnet opens with a question that is which of the following? Hyperbolical because it deals with the imponderable values, hyperbolical because it deals with the impossible, or in some or other way it is rhetorical. तो हम जानने की कोशिश करते हैं कि इन चारों में से क्या इसका करेक्ट आंसर है। ऑप्शन नंबर 3 एक्चुअली इज द राइट आंसर। तो पहले मैं आपको बताऊंगी rhetorical होता क्या है। The speaker begins with a rhetorical question, how do I love thee? Her use of pronouns thee, as I told, is the old-fashioned form of second person pronoun you. Immediately positions the poem form, पोम एक अपोस्ट्रोफी का भी फॉर्म ले लेती है, एक डायरेक्ट एड्रेस है फ्रॉम द स्पीकर टू हर बिलवर्ड। एंड द पोम स्टार्ट्स बाय पोएट आस्किंग अ रेटोरिकल क्वेश्चन, हाउ डू आई लव दी। रेटोरिकल क्वेश्चन उन क्वेश्चंस को कहते हैं जो हम पूछ तो लेते हैं लेकिन उनका जवाब हम जानना नहीं चाहते हैं। एक्चुअली हमें अपने किसी पॉइंट को प्रूव करना होता है, इस वजह से हम उस क्वेश्चन को पूछते हैं। तो यहाँ पर पूछा गया कि मैं किस तरीके से प्यार करूँ तुमसे, हाउ डू आई लव दी, विद पोएट काउंटिंग द वेज हाउ शी लव्स दी इंस्टेड ऑफ ट्राइंग टू एक्सप्लेन हाउ शी लव्स दी। तो पोएट काउंट कर रही है अपने वेज कि मैं ऐसे प्यार करूंगी, मैं वैसे प्यार करूंगी, बहुत सारे तरीके हमारी पोएट बता देती है। शी डज सो बिकॉज शी कैनॉट पॉसिबली एक्सप्लेन हर लव। हमारी पोएट को ऐसा लगता है कि वो अपना लव कैसे कैसे शो करेगी वो तो उसको पता है, लेकिन वो अपने लव की डेप्थ को एक्सप्लेन नहीं कर सकती। सो शी स्टार्ट्स विद लिस्टिंग सम परहैप्स द मोस्ट पैशनेट वे ऑफ हर लव टुवर्ड्स दिस यू, टुवर्ड्स दिस दी। तो ये एक ऐसा क्वेश्चन है जो कि हमारी राइटर ने या हमारी स्पीकर ने इम्पोज किया है अपने लवर की तरफ। दिस इज रिटोरिकल। ऑप्शन नंबर 3 मैंने आपको बताया था राइट आंसर है। दिस इज रिटोरिकल बिकॉज इट मेक्स एन इम्पैक्ट रादर देन जेनरेट्स इन्फॉर्मेशन। तो हमें इस क्वेश्चन के थ्रू उसके लव की इन्फॉर्मेशन ज़्यादा नहीं मिलती, हमें उसका इम्पैक्ट ज़्यादा जानने को मिलता है, हमें वो सारे काउंट्स मिलते हैं किस किस तरीके से फीमेल लवर अपने मेल लवर को लव करेगी। दैट इज वाई ऑप्शन नंबर 3 रिटोरिकल बिकॉज इट मेक्स एन इम्पैक्ट रादर देन जेनरेट्स इन्फॉर्मेशन। तो रिटोरिकल क्वेश्चन क्या है ये तो आप सभी लोग जान ही गए होंगे। एक ऐसा क्वेश्चन जो पूछा जाता है लेकिन उसके जवाब की उम्मीद नहीं की जाती है। तो आप यहाँ पर देख सकते हैं कि वो सभी तरीके के क्वेश्चंस पोज किए हैं हमारी राइटर ने, हमारी स्पीकर ने यहाँ पर इस पर्टिकुलर सोनेट में, एंड दैट इज वाई ऑप्शन नंबर 3 इज द right answer. Okay, now we have reached to the end of this video. I hope the video has been helpful for you, and please do not forget to share and subscribe the channel. You can contact us to join our online and offline classes too. WhatsApp numbers are given in description. Thanks for watching and best of luck for your exams.